Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss the MCQ test on sequences and series. So let's move ahead. But before that, here is one important information for all of you. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ type of questions. Apart from that, case study questions are also given in the book. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, math mission. Well, before we start the discussion of today's test, here is one important thing that you people must not miss. That is to subscribe this beautiful channel of yours so that you get the important updates of each and every video that we upload here on this channel. Moreover, you must like this video and share the video with all of your classmates ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके क्लास 11th मैथमेटिक्स में. और अब चलते हैं क्लास 11th के MCQ टेस्ट ऑफ सीक्वेंसेज एंड सीरीज के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं. So here we have question number 1 of this test based on sequences and series. So question 1 में क्या बोला हुआ है? Let arithmetic mean between A and B be same as the arithmetic mean between P and Q. Then आपको करेक्ट ऑप्शंस यहां पर सिलेक्ट करना होगा. देखिए A और B के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A एंड B के बीच के अर्थमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला है A प्लस B ओवर 2. ठीक है. P एंड Q के बीच के अर्थमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा P प्लस Q ओवर 2. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो वैल्यू आपने निकाली है दिस इज सेम एज दिस वैल्यू. तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे और उसके बाद जो भी ऑप्शन यहां पर हमें सूटेबल लगेगा उसको मार्क कर देंगे. तो वंस यू इक्वेट दीज टू, हमें क्या मिलेगा? A प्लस B ओवर 2 इज इक्वल टू P प्लस Q ओवर 2. डिनोमिनेटर में 2 तो कैंसिल हो जाएगा एंड देन वी विल हैव A प्लस B इज इक्वल टू P प्लस Q. अब यहां पर किसी भी ऑप्शन में ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां देखूं ऑप्शन A में तो A माइनस P है, इसमें भी A माइनस P है. तो एक काम करते हैं, इस P को LHS में शिफ्ट करते हैं. RHS से इस P को LHS में शिफ्ट करेंगे. सो इट विल बी A माइनस P. और यहां पर जो प्लस B है ना LHS में, इसे RHS में ले चलो. सो इट विल बी इक्वल टू Q माइनस B. एक बार ध्यान से देखो, क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है A माइनस P इज इक्वल टू Q माइनस B? सो इट इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ. तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए सही हो गया. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन 2 में क्या है? Question 2, as you can see, is there on the screen now. इसमें बोला हुआ है the sum of 500 arithmetic means between 2 and 3 is. 2 and 3 के बीच में जितने भी अर्थमेटिक मीन हैं कितने हैं? तो 500. तो पहला मीन आएगा ऐसे, दूसरा मीन ऐसे, तीसरा मीन ऐसे, एंड दिस विल बी till A 500.
ठीक है, अब ये सभी टुगेदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, जबकि ये कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 से लेकर कैपिटल A500 तक ये जो नंबर्स हैं, ये बीच वाले, दे आर द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 3। समझे? ठीक है, अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं यहां पर हम लोग। और एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। A और B के बीच में सपोज n अर्थमेटिक मीन्स हो, A1, A2, A3, A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स अगर हमें दिए गए हों और इन सभी मीन्स का हमें सम निकालना हो, इन सभी मीन्स का हमें क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मीन्स बिटवीन A एंड B इनटू सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। सो A एंड B का सिंगल अर्थमेटिक मीन तो ये रहा, क्वेश्चन 1 में हमने यूज भी किया था, ठीक है। और A एंड B के बीच में कितने मीन्स हैं टोटल? A1, A2 से लेकर AN तक, यानी टोटल n मीन्स हैं। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन्स का n टाइम्स करोगे, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन में 500 अर्थमेटिक मीन्स हैं 2 और 3 के बीच में, और आपको जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, यही अर्थमेटिक मीन्स है 2 और 3 के बीच में। तो आपको इस क्वेश्चन में इस पूरी क्वांटिटी का सम निकालना है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो मैंने आपको अभी समझाया उसके बेसिस पे यहां पर बेसिकली हमें यह निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। और ये जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अकॉर्डिंग टू दैट टोटल मीन इतने हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 3, तो ये बनेगा 2 + 3 अपॉन 2। ये क्या बन जाएगा बेटा? दिस विल बी 250। ये 2 से 500 को कैंसिल कर दिया, 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 125 और ये फिर 0 यानी 1250, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्या बताया था मैंने? सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स विल बी गिवन बाय n टाइम्स मीन्स नंबर ऑफ मीन्स इनटू सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। ठीक है, इसी का हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना। इफ A, A1, A2 till AN, B आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको A1 + A2 + A3 till AN इसकी वैल्यू निकालनी है। वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन 2 में जो चीज मैं अभी समझाकर आपको आया हूं, वही चीज यहां पर आपसे पूछा गया है। ये सब क्या है? दीज आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो A एंड B का अगर हम सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो ये होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B के साथ, तो ये जो वैल्यू है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगी। और ये क्या है? सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। समझ गए? तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर कौन से वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है? सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 हियर। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? सपोज n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 17। 3 और 17 के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किया गया है। फर्स्ट मीन ये रहा, सेकंड मीन ये रहा, और n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से ये सभी एक साथ मिलकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, सच दैट ये जो है ना, जिनको मैंने अंडरलाइन किया, दे आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 17। आगे क्या बोला हुआ है? इफ द लास्ट मीन इज 3 times द फर्स्ट मीन। तो लास्ट मीन ये रहा, दिस इज 3 times द फर्स्ट मीन। तो आपको n की वैल्यू बतानी है।
अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ऐसे होता है बच्चों, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर ये बन जाएगा a प्लस एन डी 3 टाइम्स, ये बनेगा a प्लस 1d, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो ये बनता है b माइनस a अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीन्स प्लस 1। यहां b का मतलब है 17, a का मतलब है 3, तो 17 माइनस 3 यानी 14 ओवर n प्लस 1। d की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, a की जगह 3 है ही। चलिए काम शुरू करते हैं। तो ये 3 प्लस n इंटू डी की वैल्यू बाद में पुट करूंगा, यहां पर भी d है, ध्यान से आप देखते रहना। ये बनेगा 3a प्लस 3d। साइड चेंज करते हैं तो nd माइनस 3d, तो यहां से हम d कॉमन लेंगे, वी विल हैव n माइनस 3 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू भी पुट कर दो माइनस में 3, समझ गए? तो ये बनेगा 3 3 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो अब यहां से हमें d की वैल्यू पुट करके आगे काम करना होगा। d क्या है? इट इज 14 ओवर n प्लस 1 इंटू में n माइनस 3, नाउ दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट था बेसिकली। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 14 इंटू n माइनस 14 3 42 इज इक्वल टू 6n प्लस 6। साइड चेंज करो, 14n माइनस 6n यानी 8n हो जाएगा, 6 प्लस 42 यानी 48 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से n आ जाएगा 48 अपॉन 8 यानी 6, n की वैल्यू आ चुकी है, यानी ऑप्शन बी यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन 4 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है? सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। इसमें बोल रहा है अ टोटल ऑफ 2n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन नंबर्स हुज सम इज 13 अपॉन 6। दो गिवन नंबर्स हैं, इनको हम a एंड b एज्यूम कर लेंगे। तो बोला हुआ है इन दोनों नंबर्स का सम इज 13/6, ठीक है। और a एंड b के बीच में इतने अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं, यानी a और b के बीच में इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं, ऐसे लास्ट मीन ये है, ठीक है। और ये सभी AP में होंगे एक साथ, सच दैट ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये अर्थमेटिक मीन्स होंगे बिटवीन A एंड B, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बोला हुआ है? इफ द सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1। तो बेसिकली इन सभी अर्थमेटिक मीन्स का हमें सम करने के लिए बोला गया है, तो इन सब का मैंने सम किया। नाउ दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1। तो जितने भी मीन्स है ना उन सभी का सम करोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मीन्स प्लस 1। क्या बोला हुआ है? सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड आर, यानी आपको पहले n निकालना है फिर 2n निकालना होगा, क्योंकि 2n इज द टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में आपके साथ डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू दैट ये जो LHS में दिख रहा है दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मीन्स टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। समझे? ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब यहां पर a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, तो इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 13 अपॉन 12। इसको लेकर आते हैं यहां पर, ध्यान रखना बाहर ये 2n है, ये ब्रैकेट वाला बन गया 13 अपॉन 12। नाउ दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक है। आपको यहां से टोटल नंबर ऑफ मीन की वैल्यू निकालनी है, यानी 2n निकालना है। तो एक काम करेंगे, साइड चेंज करते हैं, 2n इंटू 13 अपॉन 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 1।
एक बार चेक करो मैंने क्या किया है, इस 2n को इधर ले आया और 2n को ही कॉमन ले लिया है, तो 13/12 -1 ब्रैकेट में बचेगा। यहां पर एलसीएम आप लेंगे, सो इट इज 2n, 13 - 12 दैट इज 1/12 दैट इज इक्वल टू 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2n की वैल्यू आएगी 12। अब 2n क्या था, यहां पर आप देख रहे हैं टोटल ऑफ 2n अर्थमेटिक मीन्स आर बिटवीन a एंड b। मैंने नंबर्स को a एंड b मान लिया था, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मीन्स ही तो निकालना था, यानी आंसर यहां पर ये रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला हुआ है 7 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 31। 3 एंड 31 के बीच में 7 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं, तो ये सभी एक साथ एपी में होंगे, ठीक है। देन द सम ऑफ 7 अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू x टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 31। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली हमें ये तो पहले से ही पता है कि सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स, जितने भी अर्थमेटिक मीन यहां पर हैं, तो टोटल 7 अर्थमेटिक मीन्स हैं, इन सभी का सम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मेनी अर्थमेटिक मीन्स आर देयर, तो 7 टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, यानी 3 और 31 के बीच का जो सिंगल अर्थमेटिक मीन होगा, ये हमको पहले से ही पता है। दिस इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन, दिस इज सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, ठीक है। तो सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन्स। n टाइम्स मीन्स, n का मतलब क्या है, हाउ मेनी मीन्स आर देयर, n मीन्स आर देयर। अगर मैं यहां बोल रहा हूं n अर्थमेटिक मीन्स आर देयर, ठीक है, तो यहां n का मतलब 7 हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो बोला गया था ये तो हमको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोला गया था सम ऑफ 7 अर्थमेटिक मीन्स, दैट इज, ये तो गिवन है, दिस इज x टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 31, तो ये ऐसे, ठीक है। अब इससे कंपेयर करके आपको x की वैल्यू बतानी है, तो एक बार देख लो कंपैरिजन क्या होगा। ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, और ये हमको पहले से ही पता है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू इजीली आप लोग निकाल पा रहे होंगे। ये रहा, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में क्या है बच्चों, सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 7 बोला हुआ है दिस एक्सप्रेशन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो आपको 2n की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर ये a और b के बीच का अर्थमेटिक मीन है, ये तो गिवन है कि दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, लेकिन हमको पता है a और b के बीच का अर्थमेटिक मीन हम ऐसे निकालते हैं। तो अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, सबसे पहले आप n की वैल्यू पता करो इसके अकॉर्डिंग कि यहां पर n क्या डालें ताकि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो जाए। तो मैं फोकस करूंगा डिनोमिनेटर पे, ठीक है। डिनोमिनेटर में मुझे 2 चाहिए, तो यहां पर अगर मैं n की जगह पे 1 डाल दूं, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं ध्यान से, तो a की पावर n-1 है यानी 1 - 1, b की पावर n-1 है यानी 1 - 1, ये बनेगा a की पावर 0 दैट इज 1, b की पावर 0 दैट इज 1 यानी 2। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में मेरे को 2 चाहिए, ये 2 तभी आएगा जब n की जगह आप 1 पुट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स n की वैल्यू 1 हो गई है, तो 2n क्या होगा, 2 × 1 दैट इज 2। ऑप्शन चेक कर लो बेटा, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। वैसे यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहां पर n की वैल्यू निकालने के लिए बेस सेम है तो पावर सेम है, ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइड चेंज करिए और करके देखिए, पता चल जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है।
फिलहाल एमसीक्यू है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं यहां पर देख सकता था, लेकिन मैंने ऑप्शन को भी नहीं देखा, मैंने सिंपल एक लॉजिक यूज किया कि डिनोमिनेटर में 2 चाहिए तो ये कब होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, इफ x, 2y, 3z आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर एज द डिस्टिंक्ट नंबर्स x, y, z आर इन जीपी। तो आपको कॉमन रेशो निकालना है जीपी का। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले एपी के बारे में बात करते हैं। ये तीनों नंबर एपी में है, तो जो बीच वाला नंबर है उसका डबल करिए, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी x प्लस 3z। तो यहां से बेसिकली हमें एक इक्वेशन तो मिलेगी 4y इज इक्वल टू x प्लस 3z। हमको यहां पर कॉमन रेशो निकालना है। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि कॉमन रेशो है r, तो ये जो 3 नंबर्स हैं डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, इसका फर्स्ट टर्म x है, तो यहां पर सेकेंड टर्म यानी y सेकेंड टर्म होगा बेसिकली, तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो। ऐसे ही थर्ड टर्म इज z, सो दिस विल बी फर्स्ट टर्म इंटू आर स्क्वायर, कॉमन रेशो का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से y एंड z की वैल्यू को अगर मैं यहां रिप्लेस करूं, सो 4 इंटू y का मतलब है xr, यहां पर x को x ही रहने दो, थ्राइस z की जगह है xr स्क्वायर। इसे पूरे में से आप x कॉमन लेके, यहां से x कॉमन लेके इस वाले x को कैंसिल कर सकते हो। यहां 4r बचेगा, साइड चेंज कर देंगे हम, यहां 3r स्क्वायर, 4r उधर जाएगा तो -4r, और यहां पर +1 बचेगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। अब इन जनरल तो मैं यहां पर फैक्टराइजेशन करके r की वैल्यू निकालता, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां फैक्टराइजेशन करूंगा तो एक बनेगा r-1, एक बनेगा 3r-1। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं दोनों फैक्टर्स को, 3r स्क्वायर -r -3r। हाँ ठीक है, फैक्टर तो मेरा ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू या तो 1 आएगी, इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो, या फिर r की वैल्यू 1/3 आएगी, है ना, इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो। ये वाली वैल्यू हमें करनी होगी रिजेक्ट। अगर इसे आप रिजेक्ट नहीं करेंगे तो आपको ऑप्शन ए वाला सही लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसे हम करेंगे रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट करेंगे? देखिए, कॉमन रेशो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 1 तभी आएगा जब उस जीपी के सभी टर्म्स आइडेंटिकल हों। मतलब फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म भी ए होगा, थर्ड टर्म भी ए होगा, फोर्थ टर्म भी ए होगा। समझ रहे हो? सो इन दैट केस किसी भी जीपी के अगर सभी टर्म्स आइडेंटिकल होंगे तभी कॉमन रेशो 1 बन सकता है। हमारे क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है कि डिस्टिंक्ट नंबर्स, यानी ये जो नंबर्स हैं, ये जो टर्म्स हैं जीपी के, ये अलग अलग हैं, ये डिस्टिंक्ट हैं। तो अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो फिर कॉमन रेशो 1 नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये वाला जो आंसर है आर के लिए यही ठीक होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ना। इस डिस्टिंक्ट वर्ड का भी मीनिंग है। अगर मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, या ऑब्जेक्टिव भी है, आप अगर इसी को मार्क करके चलते बनते तो गलत हो जाता ना, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव में अगर इसे आप रिजेक्ट नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती। इसको रिजेक्ट करने का रीजन क्या बताया था मैंने, कि ये जो नंबर्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लिखना भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन 9 में क्या है, इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो फिर इसमें कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा। जो मैं पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था, हालांकि मैंने यूज नहीं किया था, कोई से भी 3 नंबर, जैसे मैं इन जनरल बताऊं, कोई से भी 3 नंबर अगर जीपी में है तो आपको पता है कॉमन रेशो तो सेम होना ही है। y अपॉन एक्स निकाल दो, चाहे z अपॉन वाई निकाल लो, ये इक्वल तो होने ही है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना बच्चों क्या आएगा, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स इंटू जेड। याद क्या रखना है, अगर 3 नंबर जीपी में हैं तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर।
यानी बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर ए बी सी जीपी में है, बीच में है बी, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये रहा बेटा, ऑप्शन डी को चेक करिए, क्वेश्चन 9 ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक चीज और यूज की थी, अगर 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, जैसे यही मान लो x, y, z आर इन AP, तब क्या होता है, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू पहला नंबर प्लस तीसरा नंबर, पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है, जो मैंने यहां डिस्कस किया क्वेश्चन 9 में, बेसिकली वही यूज करने वाला हूं मैं यहां पर। ये तीनों नंबर जीपी में है तो के की वैल्यू बतानी है। हमने क्या बोला, 3 नंबर अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर। जरा इसको मल्टीप्लाई करना तो ये तो 1 आ जाएगा, मतलब के स्क्वायर 1 आ गया, तो यहां से के की वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लस माइनस 1। समझे, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी ऑप्शन ए को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहीं पर दिख रहा होगा थोड़ा सा, क्वेश्चन 11 की बात हो रही है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन 11 में बोला हुआ है अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर इज। कंसेप्ट देखते हैं बेटा, ए और बी के बीच में अगर एक ज्योमेट्रिक मीन है तो ए कोमा जी कोमा बी, ये तीनों नंबर जीपी में होंगे। मैंने क्या बोला, ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है जिसको मैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये तीनों एक साथ इस तरीके से अगर लिखे जाएं तो ये जीपी बनाएगा। और जीपी में अगर कोई से भी 3 नंबर हो तो हमको तो पता है कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला इंटू तीसरा। अब यहां से अगर मेरे को जी निकालना है, कैपिटल जी, विच इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। क्या बोला मैंने, ज्योमेट्रिक मीन, तो ये कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। समझ गए, आ जाओ इस क्वेश्चन में, आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बिटवीन दिस एंड दिस, तो सीधा आंसर क्या है, ज्योमेट्रिक मीन यानी अंडर रूट ऑफ 0.008 इंटू 0.2, क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 0.00016, तो ये बन जाएगा 0.04। एक बार चेक करके देखो, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या है, द 4th, 7th and 10th terms of a geometric progression are given by x, y and z respectively। तो आपको y स्क्वायर बताना है। अब जो जीपी है ना, इसका फर्स्ट टर्म तो नहीं पता और कॉमन रेशो भी नहीं पता। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म है a एंड कॉमन रेशो है r। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है इसलिए नॉर्मली लिख रहा हूं, मेरे लेक्चर पे फोकस करना। फर्स्ट टर्म ये रहा, कॉमन रेशो ये रहा। nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4th टर्म अगर आप निकालोगे तो 4th टर्म आएगा AR3। ठीक है, और बोला हुआ है कि ये x के इक्वल है। ऐसे ही 7th टर्म निकालोगे तो ये आएगा आपका AR⁶, यानी ये y दे रखा है। फिर 10th टर्म तुम निकालोगे तो ये आएगा ऐसे, एंड दिस इज इक्वल टू z। यहां पर देख लो। ठीक है, तो आपको y स्क्वायर निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब कैसे होगा यहां पर देखते हैं। अगर मैं y स्क्वायर निकालने जाऊं तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग क्या है y स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर इंटू r की पावर 12। यहां से देख लो आप y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो x और z की टर्म्स में हैं, जैसे ऑप्शन ए में x अपॉन z है, तो ये रहा x का वैल्यू और ये रहा z का वैल्यू। ठीक है, तो x अपॉन z करेंगे तो a कैंसल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में x इंटू z है, तो जरा x इंटू z करके देखते हैं। x इंटू z, ये आपका x है
और z ये रहा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर r की पावर 12 एंड दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर। कहने का मतलब ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, z अपॉन एक्स भी वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा जैसे ऑप्शन ए को मैंने रिजेक्ट किया, वैसे भी हमें करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है बच्चों, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 8। ये जो सीक्वेंस है एपी तो नहीं है, ये जीपी है। चेक करो, फर्स्ट टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है और सेकंड टर्म ये रहा। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, कॉमन रेशो आपको √2 मिल जाएगा। थर्ड टर्म ये रहा, इसे सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे तो भी √2 ही आएगा। सेकंड टर्म से इसको डिवाइड करना है, 4/2 √2, तो यही आएगा। दैट मीन्स ये जीपी तो है, मतलब ये सीक्वेंस क्या है, बेसिकली दिस इज अ जीपी। अब जीपी में आपको ये बताना है कौन से वाला टर्म का वैल्यू 8 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये रहा, फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म आया। सेकंड टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड टर्म आएगा। तो थर्ड टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्थ टर्म मिलेगा। तो थर्ड टर्म यहां 4 है। ठीक है, अब अगर मैं फोर्थ टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फिफ्थ टर्म मिलेगा, यानी 4√2 इंटू कॉमन रेशियो का वैल्यू दैट इज √2, ये 8 आ जाएगा। कहने का मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी इक्वल टू 8। तो ऑप्शन ए आप यहां पर चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन 14 में कह रहा है 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose sum is 7 and product is 8 are given by। यहां पर ऑप्शंस को एनालाइज करूंगा मैं। ठीक है, सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा अदरवाइज। यहां प्रोडक्ट 8 बोला हुआ है और सम 7 बोला हुआ है। ऑप्शन ए में अगर आप चेक करें, इनको ऐड करके देखना, ऐड मतलब सम निकाल रहा हूं, 7 तो नहीं आएगा, कहने का मतलब ये तो गया। ठीक है, यहां पर भी इनको ऐड करके देखो, 7 तो नहीं आएगा। इसमें ऐड करके देखेंगे तो 7 तो आएगा, लेकिन प्रोडक्ट वाली कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट 8 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करना इन तीनों को तो ये -15 आएगा, मतलब ये भी गया, यानी ये वाला ही ठीक रहेगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। बट चेक करके देखना है, ऐड करके देख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, प्रोडक्ट 8 होना चाहिए, हो रहा है। एक बात और, अगर इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, फर्स्ट नंबर को ऐसे लेता, सेकंड नंबर को ऐसे लेता एंड थर्ड नंबर को ऐसे लेता, तो ये मेरे रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाते हैं जो हमें फाइंड करने हैं यहां पर। ठीक है, अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है कि इनका प्रोडक्ट 8 होना चाहिए। यहां पर देख लो ध्यान से, r कटेगा, a³ 8 आएगा, यानी a की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इनका सम 7 दे रखा है, यानी इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 7 आना चाहिए। a की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहां पर a की इस वैल्यू को इसमें पुट करिए और फिर r निकालिए और फिर इन नंबर्स के अकॉर्डिंग a/r, a, ar लिख लो। ऑप्शन आपका यहां पर जो भी मैंने मार्क किया है वही आएगा, आप चेक कर लेना। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में क्या है, क्वेश्चन 15 में बोला हुआ है दिस बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, अभी डिस्कस करके आया था। ए और बी के बीच में ये जो सिंबल कैपिटल जी है, यही ज्योमेट्रिक मीन होगा और यहां पर इसकी वैल्यू ऐसे आती है और ये तीनों एक साथ मिलकर जीपी बनाएंगे, एपी नहीं, दे आर इन जीपी। डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दे रखा है आपको,
ये होना चाहिए अंडर रूट ए बी। तो आपको ये देखना है कि यहां पर कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर n की जगह 0 मैं पुट करूं तो यहां पर बेसिकली n की जगह 0 यानी 2 हो जाएगा और ऊपर a प्लस बी, मतलब इसके इक्वल तो नहीं बनेगा, ये वाला गया। ठीक है, यहां से n की वैल्यू आपकी आ रही है 1/2। ठीक है, n की जगह 1/2 अगर इसमें पुट करेंगे a की पावर 3/2 प्लस b की पावर 3/2 और नीचे आपका ये a की पावर हाफ और ये b की पावर हाफ। ठीक है, तो ये भी इसके इक्वल नहीं बनेगा, आप चेक करके देख सकते हो। इनफैक्ट ये अंडर रूट ए बी था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके इक्वल आना चाहिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आरएचएस वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल आना चाहिए, मतलब ये भी ठीक नहीं हो सकता। अगर इसको रिजेक्ट मारा तो इसको भी रिजेक्ट मार दो। क्यों? क्योंकि यहां से भी n की वैल्यू हाफ ही आएगी, चेक करके देख लो। कहने का मतलब ये वाला ही ठीक होने के चांस हैं, यानी n की जगह -12। इसको मैं चेक करके देखूंगा जरा, n की जगह -12, जस्ट अ मोमेंट। n की जगह -12 हमें चेक करना है ऑप्शन बी के लिए, n की जगह -12। यहां से चेक कर लो, n की जगह -12 इसमें डालूंगा मैं, इस वाले एक्सप्रेशन में, और देखते हैं ये क्या बनेगा। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा n की जगह -12 रखोगे, सो दिस विल बी a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ। चेक कर लो बेटा, नीचे a की पावर -12 प्लस b की पावर -12 इज इक्वल टू अंडर रूट a अंडर रूट b। ऐसे जानबूझ के लिखा है मैंने। ठीक है, अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट मीनवाइल एक काम और कर सकते हो, यहां पर a की पावर -12 और ये b की पावर -12, मतलब 1/a की पावर हाफ और ये 1/b की पावर हाफ, और फिर एलसीएम लेंगे तो फाइनली ये क्या बनेगा। सो दिस विल बी a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ, डिनोमिनेटर में 1/a की पावर हाफ प्लस 1/b की पावर हाफ, एलसीएम लेंगे, दिस विल बी b की पावर हाफ प्लस a की पावर हाफ अपॉन a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ, और ये वाला तो आपका है ही। ठीक है, आप जब इसको LHS वाले को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ अपॉन b की पावर हाफ प्लस a की पावर हाफ इंटू a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ। मैंने सिर्फ अभी LHS वाले को ही लिखा है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर गया, ये जो बचेगा यही तो आपका RHS वाला है। चेक करके देख लो, पावर हाफ का मतलब अंडर रूट ही होता है। कहने का मतलब जो मैंने ऑप्शन बी के लिए n की वैल्यू यहां पर निकाली थी, ऑप्शन बी के लिए n की वैल्यू निकाली थी, उससे ये वाला एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो गया है, यानी क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी इज करेक्ट। कैसे सॉल्व किया है बता दिया मैंने आपको, बाकी आप प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते होंगे तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर n की वैल्यू निकलेगी। कैसे? बेस सेम है LHS में और RHS में, तो उनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, ये वाला फंडा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन 16 में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये सम है बेसिकली, सम ऑफ सीरीज अप टू इंफिनिटी। अब एक ऐसा सीरीज है, अगर आप चेक करें तो इसका फर्स्ट टर्म तो 4 है और कॉमन रेशियो निकलेगा, यहां पर चेक करके देख लो 1/3 आएगा, निकालो। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/3, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म 1/3 ही आएगा, तो कॉमन रेशियो यहां पर सेम आ रहा है। कहने का मतलब ये जो सीरीज है ये जीपी है, लेकिन कैसी जीपी है? तो ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है। ठीक है, अब इनफाइनाइट जीपी जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर अप टू इंफिनिटी, इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस से रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एस ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो फॉर्मूला ये होता है बेटा। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट टर्म तो लिख दिया मैंने, कॉमन रेशियो लिख दिया, और आपको सम निकालना है तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, दैट इज 1/3
So once we simplify, this is 4 upon 2 by 3 यानी 4 into 3 by 2. सिंप्लीफाई करो बच्चा, इसका आंसर आएगा 6 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है अप टू इंफिनिटी। ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का केस है, ध्यान से देख लो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, तो ये सब इसके इक्वल आ जाएगा। ये जो दे रखा है ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब जरा एक्सपोनेंट यानी पावर में ध्यान से देखो, तो पावर में फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा हाफ, एंड अगर आप कॉमन रेशियो निकालेंगे तो 1/4 को 1/2 से डिवाइड कर लो, 1/4 को 1/2 से डिवाइड कर लो, तो ये भी आपका 2/4 यानी हाफ ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंट है दिस इज एक्चुअली इनफाइनाइट जीपी, और ये सभी टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। क्या बताया मैंने, अभी पिछले क्वेश्चन में समझा कर आया हूं, ये वाला फॉर्मूला। तो यहां पर फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपको, कॉमन रेशो भी दिख रहा है आपको, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर तो हाफ नीचे भी हाफ ही आ गया, तो ये 1 हो जाएगा बच्चों। तो s इंफिनिटी की वैल्यू यहां पर 1 आ गई, यानी 3 raised to the power 1 विच इज ओनली 3 यानी ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा हमारे पास। इसमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन 18 में बोला हुआ है कंसीडर एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन एज दिस। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म एंड सो ऑन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन से वाला गलत है, इनकरेक्ट वैल्यू कहां पर है, किस ऑप्शन में है। ठीक है, assume that a and r denote the first term and common ratio of the progression respectively। ठीक है, तो a की वैल्यू है √2 + 1, ऑप्शन ए में यही दे रखा है, कहने का मतलब ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, करेक्ट वैल्यू है इस ऑप्शन में, हमको इनकरेक्ट वैल्यू वाला ऑप्शन देखना है। ठीक है, अच्छा कॉमन रेशियो निकालोगे तो 1 अपॉन यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो बेसिकली यही आएगा, यानी ये भी करेक्ट ही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी में दे रखा है √2 - 1। अब कॉमन रेशियो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, कहने का मतलब ये भी ठीक है, समझे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ले देकर यही बच गया जो कि इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी बेसिकली यहां पर हमें ऑप्शन डी को ही मार्क करना पड़ेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं। एस इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज √2 + 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, कॉमन रेशो ये वाला लिख लो, तो ये बन जाएगा आपका √2 - 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आपका है √2 + 1 और नीचे ये हो जाएगा आपका 2 - √2। अब अगर हम देखें ध्यान से, डिनोमिनेटर वाला सेम है, न्यूमरेटर वाला डिफरेंट है, तो कहने का मतलब अगर हम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालेंगे यहां पर तो ये आना चाहिए, लेकिन इसने यहां पर ऐसे दे रखा है, तो ये वैल्यू इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट वाला ही बताना था, तो ऑप्शन डी मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 ये रहा, इसमें क्या करना है हमें, फॉर अ जीपी 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशो दे रखा है 2, आपको 12th टर्म निकालना है। कॉमन रेशो ये है, फर्स्ट टर्म को मैं ए ले लूंगा, 8th टर्म ऐसे निकलेगा एंड दिस इज 192। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है 12th टर्म, तो 12th टर्म का मतलब हो गया AR⁴ अब अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से, एक सेकेंड, इसको अगर मैं लिखूं इस तरीके से तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू वहां पर है दैट इज 192।
r मतलब ये रहा 2 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16, तो 192 इंटू 16। तो एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो अगर मैं देखूं इसके अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन ये रहा बेटा, ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है हमें, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5। तो बेसिकली a प्लस ए आर ये 5 है। ठीक है, कॉमन रेशो r, फर्स्ट टर्म a ले लिया मैंने। इज इट क्लियर, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद बोला हुआ है ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स। तो अगर मैं a1 ले लूं तो a1 के सक्सीडिंग टर्म्स क्या होंगे बेटा, तो a2 होंगे, a3, फिर a4, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इन सभी का अगर मैं सम ले लूं, इन सभी का सम ले लूं, क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है तो पता नहीं कहां तक जाएगा, तो इन सभी का सम ले लूं तो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये a1 आएगा। अगर यहां पर a2 लोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स और ब्रैकेट में a3 प्लस a4 प्लस a5 टिल इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके से यही बोला हुआ है ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स। इसका मतलब यही हुआ। a1 का मतलब तो a है बच्चों, ये 3, a2 का मतलब ar, a3 का मतलब ar स्क्वायर, a4 का मतलब ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, आपको कॉमन रेशो बताना है, यानी r की वैल्यू बतानी है। तो इस पूरे में से a कॉमन आ जाएगा, इधर वाला a कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, तो यहां पर r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इस तरीके से। वैसे तो r भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिया जानबूझ के। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3। यहां पर ये जो ब्रैकेट वाला है वही बचेगा, तो ब्रैकेट वाला बेसिकली इनफाइनाइट जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म r है एंड कॉमन रेशो भी r है, और ये सभी ऐड हो रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। सो 1 इंटू 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस आर रहेगा। इस स्टेप के बाद यहां पर आ गए हम लोग। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3r। साइड चेंज करते हैं तो 1 विल बी इक्वल टू 4r, तो r की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/4। 1/4 इज देयर इन द थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 to 25 which will be based on assertion reason type of questions। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है बच्चों, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में किस तरीके से आपको आंसर करना होता है। आई एम श्योर यू ऑल पीपल आर अवेयर ऑफ दैट। ऑप्शन ए को मार्क करते हैं, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी विल बी मार्क्ड व्हेन both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। ऑप्शन सी को हम मार्क करेंगे अगर assertion true होगा but reason false होगा। ऑप्शन डी will be taken as correct option when assertion is false but reason is true। तो इस तरीके से आपको यहां पर आंसर करना होगा करेक्ट ऑप्शन को मार्क करते हुए। तो क्वेश्चन 21 जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला हुआ है, द सेवंथ टर्म इज 8192 फॉर दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, असर्शन की बात करेंगे। रीजन में बोला हुआ है इफ a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन इट्स nth टर्म इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, मतलब रीजन वाला जो स्टेटमेंट है इज एब्सोल्युटली ट्रू, रीजन तो ट्रू है। असर्शन में बोला हुआ है सेवंथ टर्म इज दिस फॉर दिस जीपी। इस जीपी का फर्स्ट टर्म ये रहा और कॉमन रेशियो निकालोगे तो ये 4 आएगा बेटा, 8/2 है ना। अब मुझे सेवंथ टर्म निकालना है, a7 इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से ही होगा। सो इट विल बी ar⁶। a का मतलब ये रहा, r का मतलब है 4⁶। ठीक है, कोई दिक्कत। 4⁶ को आप लिख सकते हैं 2⁻12। कैसे लिखा बेटा, 4⁶ मीन्स 4 को ऐसे लिख लो। अब रूल ऑफ एक्सपोनेंट से ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 6 ऐसे,
यानी 2 की पावर 12 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब इसको मैं कैसे करूंगा, 2 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे किया क्यों, ये जो बीच वाला है ना 2 की पावर 10, ये मेरे को याद है, दैट इज 1024। यहां पर ये 2 है और यहां 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 यानी 8। इसे जरा अब मल्टीप्लाई कर लो, इजी पड़ेगा। 8 4 जा 32 है ना, कैरी 3, 16 और 3 19, 8 1 जा 8। कहने का मतलब असर्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू है, असर्शन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, एंड मोर ओवर assertion is being correctly explained by the statement given in reason। तो यहां पर both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ये वाला ऑप्शन मार्क होगा, ऑप्शन ए यहां मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 21 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। असर्शन में बोला हुआ है द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर एक्स इज पॉजिटिव इज 4। ठीक है, रीजन में बोला हुआ है इफ ए एंड जी रेस्पेक्टिवली डिनोट द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स देन अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। क्लास 12th में भी इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। क्लास 12th में एक कंसेप्ट आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट बुक। तो इस कंसेप्ट से आप क्लास 12th में भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक बताया मैंने आपको, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ चैप्टर 6 एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट। फिलहाल असर्शन को यहां पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर मैं दो नंबर्स ले लूं a एंड b, पहला नंबर है 2x, दूसरा नंबर है ये 8/x। क्योंकि x पॉजिटिव है तो a एंड b दोनों पॉजिटिव होंगे, 2x भी पॉजिटिव होगा, 8/x भी पॉजिटिव होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो अगर मैं इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालूंगा सो दैट विल बी a प्लस b/2, और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा सो दैट विल बी √ab। ये सब आज की क्लास में कई बार डिस्कस हुआ है। तो अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन लिखा हुआ है रीजन के स्टेटमेंट में, कि अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, ऊपर चेक करिए, 2x प्लस 8/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस √ab। तो a इंटू बी, एक बार ध्यान से देख लो, x कटेगा, x पॉजिटिव नंबर है तो x कटेगा, 8 2 जा 16, 16 का रूट यानी 4, और बाहर 2 पहले से ही है, कहने का मतलब ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान से सुनना, ये जो एक्सप्रेशन है यही यहां पर गिवन है, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ईदर 8 और मोर देन 8। समझे, ये जो एक्सप्रेशन है या तो ये 8 होगा या 8 से बड़ा होगा। तो इस एक्सप्रेशन का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। समझे, तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। समझे, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है असर्शन में, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 4, तो ये तो बेसिकली 8 होगा ना, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। कहने का मतलब असर्शन वाला स्टेटमेंट यहां पर है फॉल्स, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट मार्क करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा कंसेप्ट है, क्लास 12th में भी यूज होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 में क्या है, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, असर्शन में लिखा हुआ है द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 243 इज 27। वेल, 3 एंड 243 के बीच में जो भी ज्योमेट्रिक मीन है विच इज z, तो ये तीनों टुगेदर ZP में होंगे, एंड वी नो दैट z स्क्वायर विल बी
फर्स्ट टर्म इंटू द थर्ड टर्म। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 729 आ जाएगा। तो यहां से g की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ दिस विच इज 27। दैट मीन्स बिल्कुल ठीक यहां पर बोला हुआ है, यानी असर्शन का जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू, नो डाउट इन दैट। ठीक है, अब इसके बाद रीजन में क्या लिखा हुआ है, इफ दीज आर इन एपी देन these terms denote the n arithmetic means between a and b such that this an is equal to this expression। अब ये जो ब्रैकेट में है ना, ये तो कॉमन डिफरेंस है ना, और ये जो कंसेप्ट लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट है बिटवीन a एंड b। ठीक है, आज की क्लास में कई बार डिस्कस हुआ है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट पंगा ये पड़ा कि असर्शन में ज्योमेट्रिक मीन की बात हो गई, रीजन में अर्थमेटिक मीन की बात हो गई। कहने का मतलब यहां पर बोथ आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन बी को यहां पर मार्क करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला हुआ है बच्चों, असर्शन ये दे रखा है। ठीक है, रीजन में लिखा हुआ है if the number of terms of an arithmetic progression is odd then the arithmetic mean between first term and the last term is given by the middle term of the arithmetic progression। रीजन को सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, असर्शन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं जरा। तो सबसे पहले असर्शन की बारी, मैं LHS की बात कर रहा हूं, सिर्फ असर्शन में जो LHS लिखा हुआ है सिर्फ इसी की बात करूंगा। ठीक है, समेशन में k इज द वेरिएबल फ्रॉम 1 to 11 और ये फंक्शन है 2 + 3 raised to the power k। तो बेसिकली अगर मैं असर्शन की बात करूं तो ये बनेगा LHS वाला, ये बनेगा 2 + 3 की पावर 1 पहला टर्म, फिर 2 + 3 स्क्वायर अगला टर्म, फिर 2 + 3 क्यूब, और ऐसे करते हुए लास्ट में आपको मिलेगा ये, क्योंकि जो वेरिएबल के है उसकी लिमिट 11 तक गई हुई है। तो बेसिकली यहां पर टोटल ये ब्रैकेट्स कितने बनेंगे, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 11 तक है, तो टोटल ये ब्रैकेट इसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो 11 बनेंगे। हर ब्रैकेट में पहली पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है और ये सभी ब्रैकेट्स ऐड हो रहे हैं, तो 2 भी 11 बार लिखा गया होगा और ये सभी ऐड हो रहे होंगे, यानी 2 × 11 प्लस जो 3 की पावर वाले हैं वो मैं अब लिख रहा हूं। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 3 की पावर वाले लिख दिए हैं, ध्यान से देख लो। दिस इज अ जीपी, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशो भी 3 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 हैं, और ये बाहर आपका हो जाएगा 2 × 11 यानी 22। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला यहां पर मैं यूज करने वाला हूं। तो ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी a ब्रैकेट में r⁻n - 1 अपॉन r - 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर r तो वैसे भी 1 से बड़ा ही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस ब्रैकेट की बात हो रही है। तो फर्स्ट टर्म है 3 ब्रैकेट, कॉमन रेशो भी 3 है, यहां पर चेक कर लो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके देख लो, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 11 -1 अपॉन r - 1 यानी 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने LHS वाले को सॉल्व किया है, इसे हमें कंपेयर करना होगा इसके साथ जो RHS में दे रखा है। तो ब्रैकेट वाला ठीक है, 3/2 इसके आगे है, प्लस n की जगह कंपेयर करके देख लो, यहां पर n है और यहां पर 22 है। तो इसने बोला हुआ है n की वैल्यू 22 होगी, कहने का मतलब असर्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, अब रीजन की बात करेंगे, एक सेकेंड। रीजन में बोला हुआ था नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑड। तो किसी एपी की बात हो रही है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो 1 होंगे या 3 होंगे या 5 होंगे, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो ऑड नंबर बेसिकली इस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी हमारी एपी में टोटल इतने टर्म्स होंगे। ठीक है, देन द अर्थमेटिक मीन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन बाय दिस। अब ये जो भी एपी है, अगर इसका फर्स्ट टर्म मैं A1 ले लूं, ये आपका फर्स्ट टर्म है,
तो क्योंकि लास्ट टर्म इसके अकॉर्डिंग आएगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1 है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टर्म को हम नॉर्मली ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस तो नॉर्मली डी ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म। और अगर इसे हम कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे लास्ट टर्म को, तो ये आएगा a प्लस 2n+1 -1, समझे कि नहीं, 2n+1 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। सो बेसिकली इट इज कमिंग आउट टू बी a प्लस 2n इंटू डी। यहां पर समझे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, यहां पर nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। अब इसने बोला देन द अर्थमेटिक मीन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का अर्थमेटिक मीन अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टर्म यानी a एंड लास्ट टर्म यानी ये, दैट इज a प्लस 2nd। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। a और b के बीच का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस b अपॉन 2। तो यहां पर a मतलब फर्स्ट टर्म, b मतलब लास्ट टर्म, तो a प्लस b अपॉन 2 कर दिया मैंने, समझे। ऊपर ये 2a बनेगा, ये 2nd बनेगा, नीचे 2 है, सिंप्लीफाई कर लेना। तो क्या बोला मैंने, 2a प्लस 2nd अपॉन 2, 2 कॉमन लो, यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद a प्लस nd। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसने बोला था कि द अर्थमेटिक मीन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन बाय द मिडिल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपकी जो एपी है उसमें टोटल इतने टर्म्स हैं, तो इसका मिडिल टर्म कौन से वाला होगा बेटा, मिडिल टर्म ऑफ एपी विल बी (2n+1+1/2)। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा n+1, ठीक है। यानी ये आपका मिडिल टर्म होगा। अब मिड टर्म यानी n+1 टर्म को अगर मैं निकालने लगूं तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या बन जाएगा, a प्लस nd। चेक करके देख लो, तो ये जो मिड टर्म है a प्लस nd आ गया। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का जो अर्थमेटिक मीन था वो भी यही आया था, तो इसने यही लिखा हुआ है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन बाय मिड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर देख लो, बात समझ आई। कहने का मतलब रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ना, रीजन वाला स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझे, मतलब रीजन असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी को हम करेक्टली मार्क करेंगे। समझे, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या समझाया है ये रेड कलर में रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान रखना। फिलहाल मैंने करेक्ट आंसर को मार्क कर दिया है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25 इन फ्रंट ऑफ अस। असर्शन में बोला हुआ है सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 21 इज 12। एक्सप्लेन करते हैं जरा इसको। सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 21 विल बी गिवन बाय दिस। तो यहां से ये 24/2 यानी 12 आ गया, तो सिंगल अर्थमेटिक मीन 12 होगा, यही लिखा हुआ है असर्शन में, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन में देखते हैं क्या है, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। वेल, यही तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, और आज के क्लास में कई बार हमने आपके साथ डिस्कस किया है, यानी ये भी सही है। सो दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन असर्शन। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है बेटा। Here is one important information for all of you.
अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ type of questions. Apart from that, case study questions are also given in the book. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।